हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? ठीक हो ना? तो ठीक तो हो गई, क्योंकि आपने चैनल चुना है हमारा डीजी कोकनी कॉलेज, है ना बच्चों? तो आज हम 11th साइंस का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेसन देखने वाले बच्चों। तो एक्चुअली इसको देखने से पहले आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, व्हाट इज़ द केमिस्ट्री। व्हाट इज़ द केमिस्ट्री? सो केमिस्ट्री इज द सेंट्रल सायन्स. सो द केमिस्ट्री इज द सोल ऑफ सायन्स असं म्हटलं तरी चालेल, because the chemistry required in the studies of physics, chemistry required in the studies of biology, biological science, applied science, earth and space science. Everywhere chemistry is the chemistry, because you know that there are 118 elements present in the periodic table, and each and every things are made up from these elements. So each and everything's chemistry, correct? Each and everything contains chemistry. So chemistry is the, that's why we call it as central science. Okay. So and though it is an ancient science, due to the development and advancement in science and technology, chemistry has developed as modern science. Okay. अप्लाइड साइंस असे अप्लाइड साइंस हो, ये जैसे मेडिसिन है, डेंटिस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, डेली होम यूज प्रोडक्ट है, इन सब चीज़ों में हमें क्या चाहिए? केमिस्ट्री. सो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नेचर ऑफ केमिस्ट्री? सो केमिस्ट्री आर क्लासिफाइड इनटू 5 and also more than 5, like organic chemistry, inorganic chemistry, analytical chemistry, physical chemistry, drug chemistry, and biochemistry is also part of the chemistry. Okay, so there we can say like this, there are 6 types of chemistry. Okay, then next. So what is the matter? You know that everything's we call, you know that matter classified into 3 class, that is the states of matter: solid, liquid and gas. And also in chemistry there are 2 types of matter, one is the pure substance and one is the mixture. So pure substance is also classified into 2 types. Okay, like pure substance classified into 2 types. Okay, which one? Elements and compound. Okay bachcho. Then elements are also classified into 3 types: metals, non-metals and metallites. And that's why periodic table is also divided into 4 block, but classified into all the elements which is present in the periodic table are classified into 3 categories, that is metal, non-metal and metallites. So what is the compound? So compound is the mixture, the compound is the 2 or more substance or more 2 or more elements are come together, okay, and form bond between them. So that is a compound. Okay, then second types of matter, that is a mixture. So mixture has also 2 types, one is a homogeneous, another is a heterogeneous. Okay, so these are the 2 types of mixture. ओके बच्चों, तो चलो, तो ये तो समझ में आया. अभी डिटेल उसमें देखते हैं. व्हाट इज द प्योर सब्सटेंस? ओके, मैटर क्लासिफाइड इनटू 2 types: pure substance and mixture. So what is the pure substance? So we know that प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर, एक्चुअली कैसे वो दोनों में डिफरेंस क्या है? सो प्योर सब्सटेंस हैव ए डेफिनेट केमिकल composition, so that is the main difference. Okay, but in case of mixture there is a no definite chemical composition, so they don't have definite property, but pure substance has definite properties, like pure metal, distilled water. Okay, and example of mixture, that is the paint. So पेंट में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ ऑयल्स, पिगमेंट, एडिटिव, करेक्ट ना? और कंक्रीट जैसे सैंड, सीमेंट, वाटर, दिस इज द मिक्सचर. ओके, सो प्योर सब्सटेंस इज also divided into elements and compounds. So elements, what? The elements and atoms are same. How? Because atom is the smallest part of elements, and the elements and atoms both are cannot be broken into simpler substance by ordinary chemical changes, and it is also invisible. Okay, so that is a major difference in difference between the mixture and pure substance. Okay, that is a major difference between the pure substance and mixture. Okay, and also class elements classified into 3 types:
matter. So pure substance has definite shape, that's why it has properties. Okay, definite composition, that's why it has properties. So which is the properties of metal? So first property, it is a luster, यानी इसका शाइनी सरफेस होता है. Then it conduct the heat and electricity. It can be drawn into wire, that is the ductility. It can be hammered into thin sheet, that is the malleability. So these are the properties of metal, and the example of metal, that is the gold, silver, copper, iron, mercury. In the all elements, there is only two liquid elements. That is the mercury, which is present in metal state, solid state, and another is the bromine. It is also present in liquid state, but it is non-metal. Okay, listen carefully and माइंड में ऐसा बिठा लो जिससे आपको 118 में से दो लिक्विड ऐसा याद रहना चाहिए. So next one is the non-metals, and the metals properties are totally different than non-metals. Metals are luster but non-metal no luster. That means there is no shiny surface, but there is some exception like diamond and iodine are the luster. Non-metal is bad conductor of heat and electricity, but here is also exception because of graphite allow the conductivity, but graphite is a allotropes of carbon. Graphite is made up from the carbons, that's why it is non-metal, but after that it can allow the electricity. That's why we can say that there is some exception in non-metals, but generally non-metals is the bad conductor of heat and electricity. Then it cannot be hammered and also drawn into wire, because if there is some changes or some process apply on the non-metal, then it can be break, correct? So we cannot change into thin sheets or long wire. Okay, but because the main reason behind that is it is brittle, that's why it can be broken into simpler part or simpler piece. So next one is the metalloids. Some elements have properties intermediate between the metal and non-metals are called metalloid and or semi metals. जो ऐसे एलिमेंट्स है, जो ऐसे सब्सटेंस है जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल की भी शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की भी शो करते हैं, पर लेकिन दोनों से अलग है, इसलिए एक थर्ड कैटेगरी मिली साइंटिस्ट को, उसका नाम है मेटलॉइड्स. और एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जो दोनों की कम ज़्यादा प्रॉपर्टी शो करती है, जिनका नाम है आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. एक्चुअली मेटालॉइड का जो स्टेप जैसे होता है ना, टेम्पल का स्टेप जैसे होता है ना, फोर्ड का स्टेप जैसे होता है ना, वैसा स्टेप से पीरियोडिक टेबल में जिस स्टेप्स की वजह से नॉन मेटल मेटल सेपरेट हुए और जिन्होंने सेपरेट किया वो एक लेयर है, उसको ही हम मेटालॉइड बोलते हैं. अगर पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो उसमें आ जाएगा फिर, है ना बच्चों. तो सेकंड है कंपाउंड. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्योर सब्सटेंस एंड कंपाउंड? Pure substance cannot be broken into simpler elements or simpler substance, but are the pure substance which can be broken down into simpler substance. Pure substance है पर लेकिन इसमें इसको हम डिवाइड कर सकते हैं by ordinary chemical changes. Okay, the next one is the mixture. A mixture has two types, homogeneous and heterogeneous. What is the major difference between them? Homogeneous mixture, that means the mixture of substance are in same state. Okay, and also we can say like this, there is a mixing, a completely mixing of toward more substance when it comes together. But in case of heterogeneous, there is a no completely mixture, so some substance are lightly dissolved in other substance, that is homogeneous. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो सस्पेंशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड इन ए लिक्विड, तो लिक्विड में जब कंप्लीटली सॉलिड सोल्यूबल नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस. एंड द होमोजेनियस इज द बेस्ट एग्जांपल इन आवर होम, दैट इज अ सॉल्ट मिक्स विथ water, that is a homogeneous mixture. So we know that states of matter, there are three states: solid, liquid, gas. ओके, जब हम स्टडी करेंगे तब ये चीज़ ध्यान में रखनी, सॉलिड जो होता है उसको डेफिनेट शेप एंड साइज होती है, वॉल्यूम भी होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और उसकी जो एटम्स होते हैं उसकी पार्टिकल जो होते हैं उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट होने की वजह से वो पैकली टाइटली एक दूसरे को पकड़ के रहते हैं,
रखते हैं, इसकी वजह से उसको डेफिनेट शेप आता है, डेफिनेट साइज होती है। बट लिक्विड लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के थोड़े एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं, तो जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आने चाहिए, एक दूसरे को होल्ड करना चाहिए, वो करते नहीं, उसकी वजह से वो उसका डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज वॉल्यूम आता नहीं, सॉरी साइज शेप आता नहीं। और तीसरा गैस का देखा जाए तो गैस का भी वही प्रॉब्लम है। तो सॉलिड और लिक्विड लिक्विड के कंपैरिजन में तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर है एक दूसरे से, उसकी वजह से वो कॉम्पैक्ट नेचर शो नहीं करते, और उसको डेफिनेट ऐसे साइज से भी नहीं आता और वॉल्यूम भी नहीं आता। और वॉल्यूम भी आए तो कैसे आता है, गैस और लिक्विड जिस चीज़ में डाला जाए उसी टाइप का उसका वॉल्यूम और शेप साइज होता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये मैटर हमने देखे तो उसको मेजर कैसे करेंगे बच्चों। सपोज ये मैग्नीशियम वायर है, उसको बर्न किया है, तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो किए उन्होंने उसने तो बर्न किया है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होगी। मैग्नीशियम बर्न हुआ है, इसका मतलब ये बर्न कैसे हुआ, देन इसके बाद रिएक्शन क्या हुई, क्या बना, ये सब जो बताएंगे उसको हम प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ भी एक टाइप्स की नहीं होती बच्चों, उसमें भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है फिजिकल, क्या होता है बच्चों, फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो एक कंपाउंड के बाद जो मिक्सचर देखा हमने, तो ये जो मैटर है, ये मैटर सबसे बना होता है बच्चों। तो मैटर के तीन टाइप से, ये तो पता है, सॉलिड लिक्विड गैस अभी देखे हमने, करेक्ट। पर लेकिन ये चीज़ समझनी है, ये कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, हम पहचाने कैसे। तो इसलिए तो हमको देखना है बच्चों, क्या देखना है, प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या देखा है हमने, दो टाइप्स होते हैं, कितने बच्चों, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल। तो बच्चों अगर फिजिकल है तो फिजिकल किसको बोलेंगे, ओके, फिजिकल किसको बोलेंगे। तो ये फिजिकल जो है, जिसमें आता है कलर कैसा है कंपाउंड का, सब्सटेंस का ऑर्डर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये प्रॉपर्टी जो होती है वो फिजिकल होती है। और केमिकल चेंज में क्या होता है, जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें चेंज होता है। अगर H2A और H2O2 के साथ आता है, बराबर ना बच्चों, तो क्या बनता है, H2O। तो केमिकल रिएक्शन हुई ना बच्चों, कौन था, हाइड्रोजन गैस था, ओके, कौन था, ऑक्सीजन गैस था, और कौन बना, H2O लिक्विड। तो स्टेट्स भी चेंज हुए ना बच्चों, और रिएक्टेंट हाइड्रोजन था, रिएक्टेंट ऑक्सीजन था, पर लेकिन प्रोडक्ट H2 बना। तो इसका मतलब ये चीज़ें भी आपको समझनी है, बराबर ना। देखना है मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ को मेजर करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो कुछ तो आपको कंपैरिजन के लिए करना पड़ेगा ना। सॉलिड है सपोज, करेक्ट, और दूसरा लिक्विड है। अभी किसको सॉलिड बोलेंगे और किसको लिक्विड बोलेंगे, इसलिए तो आपको कुछ दोनों का मेजर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो हाँ ये सॉलिड होता है, वो लिक्विड होता है, ये चीज़ें तो बोल सकते हैं ना बच्चों, बराबर ना। तो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हो सकती है, देखो, मास है, लेंथ है, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम। तो ये जो होती है, ये क्या होती है बच्चों, प्रॉपर्टीज़। क्या होती है, प्रॉपर्टीज़। और कहाँ पे होती है, नेचर में। और कौन सी प्रॉपर्टीज़ है बच्चों, ये क्वांटिटेटिव। ऐसा नाम क्या, क्वांटिटेटिव क्यों नाम आया बच्चों, क्योंकि बच्चों ये किसी न किसी, कितनी न कितनी क्वांटिटी होती है, चाहे मास हो कितना केजी है, चाहे लेंथ हो कितना डिस्टेंस पे है, चाहे एरिया हो कितना एरिया है, तो ये क्वांटिटी होती है, इसलिए क्वांटिटेटिव बोलते हैं उसको। और क्लास, अब अभी जैसे आपका क्लास, हमारा हमारा क्लास और आपका घर या हमारा घर, घर की लेंथ कैसे, कितने बाय का, कितने बाय कितने का है, जैसे बोलते हैं 20 बाय 25 का है। तो यही चीज़ मैटर करती है ना, लेंथ कितनी हुई है, तो उसको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, ओके बच्चों। तो ये जो स्टैंडर्ड है, अभी मेजर करना है, पता है, चलो मेजर करना है, लेंथ मेजर करनी है, करेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट की मास मेजर करना है। तो फिर मेजर करना, तो इसका मतलब मैं अलग मेजर करूँगा, आप अलग मेजर करोगे, मैं बोलूँगा मेरा 50 kg मास है, और आपने ग्राम में कंसिडर किया, तो आपका भरेगा वो, कितना भरेगा, 5,000। मेरा 5,000 ग्राम है, तो इसका मतलब आपका ज़्यादा हुआ, ऐसा नहीं ना, बराबर ना। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ,
चाहे वो 5,000 हो, 50,000 हो, कितना भी हो। एक चीज़ समझ लो, मुझे खाली आपको फिगर से एक्सप्लेन करना है। मैं 50 kg का हूँ, आप 5,000 ग्राम के हो, इसका मतलब 5,000 फिगर ज़्यादा है 50 से, इसका मतलब आप ज़्यादा है, आपका वेट ज़्यादा है, आपका मास ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता बच्चों। ये डिपेंड्स होता है क्वांटिटी कितनी हो तो पता है, पर उसका यूनिट क्या है उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड। और जो अर्बिटरी अर्बिटरी डिसाइड करते हैं, देखो, तो इसको बोलेंगे यूनिट्स। तो अर्बिट्रेरीली जो डिसाइड करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट्स। तो यूनिट्स के दो मेथड है, दो या तीन है, पर लेकिन पहले तो कंसिडर करो। सपोज SI मेथड है, तो ये पूरे इंटरनेशनली अलाउ है, इंटरनेशनल सिस्टम है। बाद में दूसरा देखा जाए तो MKS है। देखो MKS में क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। करेक्ट बच्चों? ये ऐसा यूनिट। और ये दूसरी होती है MKS। एक्चुअली ये जो MKS और SI है ना, ये दोनों को एक जैसे मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वांटिटी का ऐसा यूनिट जो होता है वही MKS होता है। पर लेकिन दूसरा जो यूनिट है जिसका नाम, दूसरा जो है उसका नाम है CGS यूनिट। तो CGS क्या होता है बच्चों? C फॉर सेंटी, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। तो ये जो CGS यूनिट होता है वो अलग होता है, MKS यूनिट अलग होता है उसके हिसाब से। कितने बच्चों? 7 टाइप्स की। एक होती है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिकल करंट, थर्मोडाइनमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना बच्चों। और इसके सिंबल है, लेंथ जैसे एल में शो करते, तो मास एम में, टाइम टी में, पर कौन सा टी? स्मॉल टी। इलेक्ट्रिक करंट आई में, देन टेम्परेचर टी में, कैपिटल टी में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई वी। क्यों बच्चों? आई ऑलरेडी करंट को हमने यूज़ किया है, इसलिए इसको आई वी करेंगे। चलो अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, पर लेकिन इसके यूनिट से क्या है, देखो बच्चों, यूनिट्स। करेक्ट ना? ये क्या है? यूनिट किसके? एक एक क्वांटिटी के, जो क्वांटिटी यहाँ पे शो की है। तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। और इसका जो सिंबल होता है वो कैसे होता है? ये वाला, मीटर, MKG, S, A, K, मोल, सीरी मीन्स कैंडेला। ओके बच्चों, तो इस तरह ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ये आपको सीखनी है, ज़रूरी है, इसलिए मैंने पढ़ाई। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम अगर उसका डिटेल में देखा जाए तो व्हाट इज़ द मास। तो मास की डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं हम बच्चों? तो मास की तो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं, पर लेकिन इतना तो बोल सकते, इट इज़ अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर ए बॉडी कंटेंस। तो इसका मतलब ये जो कौन सी भी बॉडी हो, बॉडी के अंदर कितना मैटर है उसके हिसाब से उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है? मास होता है ना बच्चों। तो ये मास और वेट में फ़र्क कौन सा आता है बच्चों? तो वेट का देखा जाए तो वेट किलोग्राम में होता है, मास भी केजी में होता है, केजी यानी किलोग्राम में होता है। तो फ़र्क क्या है बच्चों? मास जो होता है वो खाली अमाउंट ऑफ मैटर होता है। क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर। करेक्ट ना? अमाउंट ऑफ मैटर। बट जो ये वेट होता है ना बच्चों, वेट, वेट की सबसे बड़ी बात कौन सी बच्चों? जब यम को जी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जी क्या है बच्चों? ग्रेविटी। क्या है बच्चों? ग्रेविटी। तब होता है वेट। क्या होता है? वेट। और ये भी पता है आपको, 1 kg कितना होता है? 1000 ग्राम। अगर 1000 ग्राम को अगर फिर से हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो मिलीग्राम होगा। तो इसका मतलब है, और 1 ग्राम को अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो ये होगा 1000 मिलीग्राम। अगर 1 क्विंटल देखा जाए तो कितना होता है बच्चों? 1 क्विंटल, 1 क्विंटल होता है 100 किलोग्राम। देन 1 टन कितना होता है बच्चों? 1 टन, तो 1 टन होता है 1000 kg। तो ये छोटे छोटी जो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी तो फ़ायदा है ना बच्चों, तभी तो आपको आएगा। तो अगर हम लेंथ का लेते हैं तो लेंथ क्या क्या होता है बच्चों? लेंथ पता है, किलोमीटर में शो करते हैं। और किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना होता है बच्चों? 1000 मीटर। और अगर मीटर को हम सेंटीमीटर में डिवाइड करें, है ना बच्चों, 1 मीटर को
सेंटीमीटर में डिवाइड करें तो कितना होता है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे मिलीमीटर होते, डेसीमीटर होते, डेकामीटर होता है, बराबर ना, बहुत पिकोमीटर होते, हेक्टा, हेप्टो, देन नैनो, माइक्रो, बहुत सारे यूनिट है बच्चों, छोटे छोटे। पहले लेंथ का कॉमन देखो यहाँ पे दिया है उन्होंने, वही आपको समझना है। ये जो दिया है ना वो नैनोमीटर, मीटर, पिकोमीटर, बराबर ना। नेक्स्ट है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, ये जो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जैसे सर्कल दिया है या स्क्वायर दिया है, इसने कितना वर्ड जो है ना ऑक्यूपाई किया है, तो इसको बोलेंगे इस रेक्टेंगल का वॉल्यूम। स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल है। तो वॉल्यूम जो होता है वो 1 लीटर में शो करते, किसमें बच्चों, 1 लीटर में शो करते। तो 1 लीटर कितना होता है बच्चों, 1 DM³ कितना होता है, 1 DM³। DM³ क्यों आता है बच्चों, क्योंकि कोई भी चीज़ का वॉल्यूम निकाले, 3D का वॉल्यूम निकाले, तो 3D का वॉल्यूम का क्या होता है, L × B × H। तो तीनों की साइड होती है ना, तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन करने की वजह से क्यूब आता है। फिर 1000 ml, फिर 1000 ml। ml और सेंटीमीटर क्यूब सेम ही बच्चों, क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml। तो जिसके जो जो आप पकड़ो यहाँ 1000 ml यानी 1 लीटर, तो उसके हिसाब से आप सेंटीमीटर का भी कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके बच्चों, एक क्यूब है देखो यहाँ पे दिया है। ओके, तो ये चीज़ें आपने हमने इस लेसन में पढ़ी। जो चीज़ें बच्चे की वो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों। तो